हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 जो है ज्योग्राफी का है, यानी भूगोल का है, जिसमें आज हम करेंगे बायोम्स यानी जीवोम्स। जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसमें हम इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्लांट एनिमल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके चैप्टर में जो है बायोम्स है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, temperate grassland biome. There is an important here, temperate grassland biomes. There is important. The first point here, geographical is a background. The first here, geographical background. The temperate grassland are localized in the is a typically location interior of the continent in the northern hemisphere and the marine of the continent of in the southern hemisphere. Therefore the temperate is a grassland of the southern hemisphere have a moderate climate, and then there is a counterparts of the northern hemisphere because of more marine influence, as they are the closer to the coasts. The temperate grassland of the northern hemisphere is characterized by the continental is a climate where in the extreme of the summer and the winter temperature are well marked. Through the grassland in the southern hemisphere are located along their coastal and they are located in their rain shadow area of the high coastal mountains, and this location account for the scanty rainfall in all this is a region. These grasslands are found in all the continent under different name. In the northern hemisphere, the grasslands are far more extensive in the Eurasias, and they are called to the steppes and stretch eastward from to the shore of the Black Sea of the plains of the Mancorius in China. In the Northern America, the grasslands are quite extensive and they are called prairies, and they lie between the foot hills of the Rockies and the Great Lakes. In the southern hemisphere, these grasslands are less extensive, and these are they are known as the Palmas, as the Argentinas and the Orgales and the Southern Africa, and these grasslands are sandwiched there between two dark rocks and mountain, and there are Kalahari's desert and called Revelte. In Australia, these grasslands are known as the Downs, and there is a font to the Murray, and the Darlings is the basin of South Australia. Since all these grasslands are located in the temperate zone, and they are also known as a temperate grassland, there is important here map. Here show the temperate grassland in the world. That is the most important. Paracels here and steppes, Manuel's grassland, Palmas, and the well and the downs. There is the most important grassland show in this is globe. The next year, natural vegetation and animal life. There is an important here, natural vegetation and animal life. As the precipitation is too low for the growth of tree, but it is sufficient
for the growth of grass. The natural vegetation of this region is comprised to the tree-less grasslands. Tree upper only on the slope of mountain where precipitation is more. The height of the grass varies from a place to place according to the amount of precipitation and fertility of the soil. Steppes in the particular is known as for the short and nutritious grass. The appearance of these grasses on these lands is various within the season. In the spring there is a grass beginning to be upper is a greens, fresh and blooming with the small and the colorful flower. In a summer, due to the scalding heat and the evaporation, the green grass are turned yellow and the brown. To about the is the autumns, the grass is withered, there dies, but the root is remain alive and lies dormant throughout their cold winter season. When the spring comes, there is a whole cycle is repeated. And these grasslands are naturally habitats of a variety of animals. Notable among them are antelopes, wild asses, horse, wolves, and kangaroos, emus, and the dago or wild dog. There is an important animal found in this area. The next point here, human response. The human response is the most important here. No other biomes has ever undergoes so many changes as their temperate grassland biomes, and this has happened due to the human activity. The first year, majority of the grassland has been to the converted into the is agriculture land, which has now become a famous is a granaries of the world. The second is a Cretaceous is a factor responsible for the alterations of this virgin grassland is a pastoralism or domesticated of animals. Today, virgin grassland are very rare is a sign. There is a most important point here. Today, virgin grassland are very rare sign, and there are large scale of hunting of animal has resulting into the phenomenal decreasing of the population of some animals and disappearance or destruction of some animal. There is important here for a example is a many species of animals such as antelopes, zebra, loel, leopards, hyenas has a disappearance from the Africa result by their mass hunting of animal by the European immigrant. And the introduction of the new animal and plant species has altogether changed there is a composition of native vegetation. For example, introduction of the sheep by the European shelter in Australia have a changed their composition of vegetation communities, which was originally is suited to be a native is refuse as animals as a like this is a direction of few leguminous plant and Australian temperate grassland is a surprise to the several species of the native perennial grass. There is an important point here. हमारा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जीवोम्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जीवोम्स काफ़ी महत्व रखता है। अगर हम इसके पहले ही पॉइंट की बात करें भौगोलिक पृष्ठभूमि, जो कि हम सबकी बात करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो भौगोलिक पृष्ठभूमि जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास जो है भूमियों दो विशिष्ट स्थानों पर स्थित है। एक तो है उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है महाद्वीपों के सीमांत प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है महाद्वीपों के आंतरिक भागों में और दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के सीमांत प्रदेशों में पाया जाता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों की जलवायु उत्तरी गोलार्धों की घास भूमियों की अपेक्षा काफ़ी संतुलित रहती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि दक्षिणी गोलार्ध की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि की जलवायु उत्तरी गोलार्ध की जो है घास भूमि की अपेक्षा संतुलित रहती है, क्योंकि इसके तट के समीप होने के कारण इन पर जो है समुद्री प्रभाव अधिक रहता है। यानी तट के निकट होने के कारण इस पर समुद्री प्रभाव काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध की जो है घास भूमियों की विशेषताओं उनकी महाद्वीपीय जलवायु है, जहाँ पर गर्मियों में अधिक तापमान और शीत ऋतु में
जो है तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि गर्मियों में अधिक तापमान और शीत ऋतु में हिमांक बिंदु से नीचे चले जाना। काफ़ी महत्व का बात यहाँ दर्शाया गया है। हालांकि जो देखा जाए तो दक्षिण गोलार्ध की जो घास भूमियों तट के साथ स्थित है, परंतु ये ऊंचे तटवर्गीय पर्वतों के जो है विरुद्ध छाया क्षेत्रों में स्थित होती है और इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। तो देखा जाए तो यहाँ वर्षा जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों में बहुत ही कम होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। यहाँ पर दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये रखता है कि यहाँ गर्मियों में अधिक तापमान और शीत ऋतु में तापमान जो है हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। ये घास भूमियाँ जो है सभी महाद्वीपों में पाई जाती है बखूबी, जो विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में ये घास भूमियाँ काफ़ी विस्तृत है। यूरेशिया महाद्वीपों में इन्हें स्टेपी भी कहते हैं। ये काला सागर के तट से पूर्व की ओर चीन में जो है मंचूरिया के मैदान तक विस्तृत है, यानी फैली हुई है। उत्तरी अमेरिका में ये घास भूमियाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र पर फैली हुई है तथा इन्हें यहाँ जो है पेरीज भी कहते हैं, यानी ये काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका नाम जो उस क्षेत्र में पड़ा हुआ है वो पेरी कहते हैं। और ये क्षेत्र रॉकी पर्वत और महान झीलों के बीच में विस्तृत है। कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये घास भूमियाँ उतनी विस्तृत नहीं है जितनी होनी चाहिए। अर्जेंटीना और जरूबियों में इस घास भूमियों की जो है पम्पास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ये घास भूमियाँ जो है डेक्नसबर्ग पर्वत और जो है कलाहारी मरुस्थल के बीच में स्थित है तथा इन्हें यहाँ जो है वेल्ड भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन घास भूमियों को जो है डायोनस भी कहते हैं तथा ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जो है मरे डार्लिंग्स नदियों की द्रोणी में स्थित है और ये सभी जो है घास भूमियाँ शीतोष्णकटिबंधीय में स्थित है, इसलिए इन्हें जो है शीतोष्णकटिबंधीय जो है घास भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसी बात को अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो आप देख सकते हो कि मंचूरिया घास भूमि दिख रहा है, जो ब्लैक डॉट है। पेयोरी भी आपको दिख रहा होगा, कंपास भी दिख रहा होगा, वेल्ड भी दिख रहा होगा और डाउनस कैंटरबरीज घास मैदान। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है या ग्लोब्स में भी इस चीज़ को बखूबी दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्व को दर्शा रहा है। देखा जाए तो अगर भारत में तो इस क्षेत्र का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट का तो यहाँ पर यही बात आता है कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं प्राणी जीवन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जीवन। तो देखा जाए तो इन क्षेत्र में जो है प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं यहाँ पर वर्षा की मात्रा इतनी कम होती है कि पेड़ नहीं उग सकते। तो अब देखिए कहते हैं अगर वेजिटेशन अगर बढ़ाना है तो कहते हैं बरसात काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन इस क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा होती ही नहीं है, होती है तो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर पेड़ उगना संभवतः ही नहीं रह जाता, परंतु वर्षा की मात्रा घास के उगने के लिए पर्याप्त होता है। देखिए पेड़ पौधे तो अधिक ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन घास के जो है उगने के लिए पर्याप्त वर्षा यहाँ पर हो जाती है। इसलिए इन प्रदेशों की प्राकृतिक वनस्पति जो है वृक्ष रहित घास भूमियाँ हैं, यानी यहाँ पर वृक्ष बहुत ही कम मिलते हैं और यहाँ पर घास की मैदान जो है काफ़ी है। कहते हैं वृक्ष केवल पहाड़ी ढलानों पर ही दिखाई देता है, यानी वृक्ष जो है केवल पहाड़ी ढलानों पर ही नज़र आता है और यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। पहाड़ी है तो वर्षा की मात्रा तो होगी, जनरल सी बात है। वर्षा की मात्रा और जो मिट्टी की उपजाऊपन के अनुसार घास की ऊंचाई स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्षा की मात्रा और मिट्टी के जो है उर्वरकता काफ़ी महत्व रखती है, इसी वजह से जो है यहाँ पर घास जो है विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न होती है। कहते हैं स्ट्रॉपिक घास भूमि की छोटी एवं पौष्टिक घास विशिष्ट रूप से जो है उल्लेखनीय है और इन प्रदेशों में घास के उगने का समय ऋतुओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। कहते हैं बसंत ऋतु आरंभ होते ही छोटी घास हरी भरी ताज़ी तथा छोटे छोटे विभिन्न रंगों के फूलों को जो है सुंदर खिलाई देने लग जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बसंत ऋतु आते ही आरंभ होते ही छोटी घास हरी भरी और ताज़ी छोटे छोटे विभिन्न रंगों के फूल भी नज़र आने लग जाता है। ग्रीष्म ऋतु में देखा जाए तो अधिक तापमान और अधिक जो है वैश्वीकरण होने के कारण हरी घास जो है बिल्कुल ही मुरझाकर समाप्त हो जाती है,
यानी ग्रीष्म ऋतु में जब इतना तेज धूप पड़ता है तो यहाँ वाष्पीकरण कारण कि जो वाष्पीकरण का मतलब ही होता है भाप में पानी का उड़ जाना, जिसके कारण जो होता है घास बिल्कुल ही मुरझा जाता है और सूख जाता है। लेकिन इस घास की जड़ें जो है धरातल में जिंदा रहती है, यानी ऊपर के पार्ट जो बेसिकली सूख जाती है लेकिन नीचे जो है इसके जड़ें जिंदा रहती है और पूरी शीत ऋतु में निष्क्रिय पड़ी रहती है। जैसे ही बसंत ऋतु आरंभ होती है ये फिर से हरी भरी हो जाती है। तो ये तो जनरल सी बात है। कहते हैं बहुत तेज धूप पड़ने के कारण जो है ये जो है जड़ें जो होती है ऊपर की शाखाएँ होती है नष्ट हो जाती है, लेकिन इसके जड़ें जो होती है अभी भी ज़मीन के अंदर बनी रहती है और जैसे ही बसंत ऋतु आती है ये हरी भरी हो जाती है। ये घास भूमियाँ विभिन्न प्रकार के जीवों के प्राकृतिक आवास है, यानी ये घास भूमियाँ जो है विभिन्न प्रकार के जीवों के प्राकृतिक आवास है और इसमें से प्रमुख है हिरण, जंगली गधे, गोरे, भेड़िया, कंगारू, ए मुद्दा डेमू अथवा जंगली कुत्ता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है जीव जंतु के लिए आवास के लिए जो है घास भूमि पर्याप्त होती है। उसके पश्चात है मानवीय अनुक्रियाएं, यानी मानव के द्वारा जो कलागुजारी की जाती है जिसकी वजह से ये वन जो है नष्ट हो रही है। कहते हैं कोई अन्य जीवोम इतनी परिवर्तन से नहीं गुजरा जितना कि उष्णकटिबंधीय घास भूमि जीवोम परिवर्तन से बदला है और यह सब कुछ मानवीय अनुक्रिया के कारण हुआ है, यानी मानवों के कारण जो है बहुत ही जो है विडंबनाओं से जो है ये मैदान गुजरी है। कहते हैं अधिकतर घास भूमियों को कृषि भूमियों में बदल दिया वहाँ गया है जो अब विश्व के प्रसिद्ध अनाज भंडार बन गया है, यानी सारे जो है प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट करके यहाँ पर जो है कृषि के लिए भूमि में बदल दिया गया है और देखा जाए तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध अनाज भंडार के नाम से भी अब जाना जाने लग गया है। दूसरा निर्णायक कारक जो इस अछूती भूमि को बदलने के लिए कारक है वो पशुचारण अथवा पशुपालन। तो यानी इन्हीं के इसके कारण भी जो है ये क्षेत्र जो है विनाश के कगार पे आ खड़ा हुआ है, यानी अधिक पशुचारण और पशुपालन भी इस क्षेत्र में होती है। आज इस तरह की अछूता घास भूमि जो है मुश्किल से देखने को हमें मिलती है। तीसरे पॉइंट की बात करते बड़े पैमानों पर जो है जानवरों की शिकार करने के कारण कुछ जानवरों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, यानी देखा जाए तो बड़े पैमानों पर जो है जानवरों के शिकार के कारण कुछ जानवरों की संख्या बहुत ही कम हो गई है और कुछ जीव जो है विलुप्त से हो गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत से जीव जो है विलुप्त हो चुके हैं और कुछ तो है होने के कगार पे हैं। उदाहरण के लिए बहुत से जानवरों की प्रजाति जैसे हिरन, जेब्रा, शेर, तेंदुआ आदि यूरोपियन जो है अप्रवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर शिकार करने के कारण अफ्रीकन वेल्ड में गायब हो गया है। अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर प्राणी और पौधों की नई प्रजातियों के आरंभ करने से देसी वनस्पति का संगठन बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन लोगों द्वारा भेड़ पालन शुरू करने के कारण वनस्पति जो है संगठित बदल गया है। पहले की वनस्पति यहाँ के देसी धनी प्राणियों के लिए उपयुक्त हुआ करती थी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों में जो है फलीदार वृक्षों की खेती आरंभ करने के कारण देसी सदाबहार घासों की सैकड़ों प्रजाति दबकर रह गई है। तो कहते हैं मानव ने अपना जीवन स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं और आने वाला समय में इसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। कहते हैं कि हर जीव जंतु जो है एक दूसरे पर आश्रित है और ये यहाँ पर जो है आश्रितता को ये ख़त्म कर रहे हैं मनुष्य। तो मनुष्य को ये लालच को छोड़ना चाहिए और जितना हो सके पर्यावरण को जो है संरक्षित करने में अग्रसर होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि पर्यावरण को तो सरकार ने हर तरह से रूल रेगुलेशन से बना दिया है और इसकी संरक्षण भी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई संरक्षण नहीं हो रहा है और किसी तरह के जो है कार्य भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो विश्व में जो है ग्लोबल वार्मिंग इतनी नहीं बढ़ती जितनी आज के समय में बढ़ गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इस त्रिपान सेंटर के साथ बने रहें और बने रहने के लिए कुछ नहीं करना, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। ठीक है, कहते हैं अगर जितना शेयर भी करना बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, अगर शेयर आप करते हो तो दूसरे बच्चों को हेल्प हो जाता है। और शेयर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 8th से लेके आपको MA तक के बच्चों के लिए सभी जो है हल यहाँ प्राप्त होगा, सभी चीज़ समझाई जाएगी और आपको इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी रहेगा। नहीं तो बाद में अगर टॉपिक के रिगार्डिंग आप रिसर्च कीजिएगा तो त्रिपान सेंटर आपको नहीं मिल पाएगा। और ये मैंने भी देखा है और आप भी ये करके देख सकते हो, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखने में ही
भलाई है और इससे आप जो है त्रिपाण सेंटर के हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हो।